Chapter 2 Nutrition in Animals. This is the second video of this chapter. In the first video, we have already studied about nutrition in animals, the kind of food they eat, mode of feeding, and a little bit of digestion in humans. Let's quickly recall the process of digestion. The breakdown of complex components of food into simple substances is called digestion. खाने में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बॉडी यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए उनका ब्रेकडाउन किया जाता है सिंपलर फॉर्म्स में। फूड एक कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू पास होता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपार्टमेंट्स, नेमली द बकल कैविटी, फूड पाइप और द ईसोफेगस, stomach, small intestine, large intestine, rectum and the anus. Now, the food components gradually get digested as food travels through the various compartments. फूड जैसे जैसे इन कंपार्टमेंट्स के थ्रू पास होता है, फूड कंपोनेंट्स धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाते हैं। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary gland, the liver or the pancreas, secrete digestive juices. इन एलिमेंट्री कैनाल्स में कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं। इनको कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर या फिर पैनक्रियाज। These digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute of digestive system. ये digestive juices खाने में जो complex substances होते हैं उनको simpler form में convert कर देते हैं। Digestive tract और ये सारी glands मिलकर digestive system बनाते हैं। Now let us know what happens to the food in the different parts of the digestive system. Digestive system के अलग अलग पार्ट्स के थ्रू जब फूड जाता है तो क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं? फर्स्ट, the mouth and the buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. हमारे टीथ दिखते भी अलग हैं और उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। 4 types of teeth: molar, premolar, canine and incisor. Our mouth also consists of salivary glands which secrete the saliva. हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सलाइवा डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। The food pipe or the esophagus. The swallowed food passes through the food pipe or the esophagus. जो खाना खाया होता है वो esophagus के थ्रू पास होता है। The food pipe runs along the neck and the chest. Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. Food pipe की जो वॉल है, जैसे जैसे फूड उसके अंदर आता जाता है वो मूव करती रहती है, उसका मूवमेंट होता रहता है, उसके थ्रू फूड पास होता रहता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। एक्चुअली ये पूरा मूवमेंट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में चलता रहता है एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, और फूड को नीचे की तरफ पुश करता रहता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कभी कभी ऐसा होता है कि अपना स्टमक उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है और इसलिए अपन को वॉमिट हो जाती है। द स्टमक
The stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened U. It is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end. स्टमक के वन एंड में फूड पाइप से खाना आता है एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, और स्टमक का दूसरा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो 3 चीज़ें सिक्रीट करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. म्यूकस क्या करता है कि जो स्टमक की आउटर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड. फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया अगर स्टमक के अंदर एंटर हो गए हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन बैक्टीरिया को किल करता है. डाइजेस्टिव जूसेस को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है स्टमक के अंदर. वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 काम हो गए, एक तो बैक्टीरिया को मारता है, दूसरा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि बेटर डाइजेशन हो सके. The digestive juices break down the proteins into simpler substances. स्टमक के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन कर देता है उनका, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनका ब्रेक डाउन होना होता है और वो करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस. The small intestine. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. Highly coiled मतलब बहुत ज़्यादा coiled होती है ये और 7.5 meters लंबी होती है. It receives secretion from the liver and the pancreas. Besides, its wall also secretes juices. अपन ने पढ़ा था कि लिवर और पैनक्रियास डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, तो वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद के भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है. द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. लिवर इज द largest gland of the body. It secretes bile juice. That is stored in a sac called gallbladder. Bile juice जो liver secrete करती है वो gallbladder के अंदर store हो जाता है. The bile plays an important role in the digestion of fats. Bile juice fat के digestion में बहुत important role play करता है. The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. Pancreas कहाँ पे होते हैं? Stomach के बिल्कुल नीचे. The pancreatic juice acts on carbohydrate, fats and proteins and changes them into simpler forms. अब pancreas जो digestive juice secrete करते हैं वो सिर्फ fats पर ही नहीं बल्कि carbohydrates, fats and proteins तीनों पर act करके उनका complex form उनको simpler form में change कर देते हैं. अभी तक फूड ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका है. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो फूड ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो गया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में आ जाता है, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. और जितना भी डाइजेशन बचा होता है थोड़ा बहुत वो इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट कर देते हैं. The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acids. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो उसका ब्रेकडाउन होकर वो सिंपल शुगर में चेंज हो जाता है सच एज ग्लूकोज. जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स में चेंज हो जाते हैं और ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं.
Absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. जो फूड डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अब ब्लड वेसल्स में पास हो सकता है इंटेस्टाइन की वॉल्स में, और इस प्रोसेस को द डाइजेस्टेड फूड passes into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. इस पूरी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको कहते हैं विलाई. और ये विलाई क्या करती है? The villi increases the surface area for absorption of the digested food. Digested food जो होता है उसका absorption होना होता है, उसके लिए surface area बढ़ा देती है. The surface of the villi absorbs the digested food material. जो भी digested food material होता है villi की surface उसको absorb कर लेती है. The absorbed substances are transported with the blood vessels to different organs of the body. और जो ये absorbed substances होती हैं वो blood vessels के through different organs of the body में पहुंच जाती हैं. मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में चली जाती है. वहाँ ये यूज़ हो जाती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन्स जो कि बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इसको एसिमिलेशन बोलते हैं. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. सेल्स में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका ऑक्सीजन की हेल्प से, और फिर उससे एनर्जी रिलीज हो जाती है. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो फूड अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्जॉर्ब रह जाता है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. इट्स फंक्शन is to absorb water and some salts from the undigested food materials. वाटर और कुछ सॉल्ट्स डाइजेस्ट कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स में से. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. और वो जो remaining matter होता है वो anus के through time to time remove होता रहता है. इस प्रोसेस को हम digestion कहते हैं. This was all about digestion in humans. Thank you.